any doubt, you can ask. I will pick after the 10 to 5 minutes. If any doubt, any question, you can ask me. Okay. Shall we move forward, or any question? Anyone? No, sir. We can. No, sir. Okay. Yeah. So often user means I practically tell you. Basically, suppose your database SCS. I have created this database level user. Okay. This user I am creating this database, and suppose I am creating a one user. This is the SCS test, and this associate to particular login, which have a name will be like a SCS test username and login name. You see this, both are the same. Here login will be a basically this is the my database level user, and this is the my login. And for example, I am going to this is the test user. In this case, I will take this database backup SCS, and I want to take this backup. For example, I will take this TV backup, and in some place remove this place and move to yeah. So that case, I have take a backup in this instance. My instance name test server. Okay, and I want to restore my database backup to other instance. Need to instance, I will take my other instance name will be a test server 1, or SQL server will be 1, which is I have checked here how many instance. So SQL server 1, going to this, okay, connected. Now my this instance not have a my SCS database, not have my login SCS test. But if I want to restore my SCS database here, that case I will do restoring database. Take a device backup, and demo all SCS. Okay, this, okay, and okay. File, okay, not need to, okay. So file relocate to different drive, or option override existing drive. Relocate here. Okay, guy, I have now relocate my database due to my I have already created same name database into C drive, na? So that's why. Now I have restoration completed. Now I'm going to this database, and I want to connect from my test user. It is possible to connect my test user or not? Can anyone tell me? Hello, Aishwarya? Yeah, can you? Yes, sir. Hello. No, sir. We need to create. But the test user, if he is created in the database level, then he can connect to that server, right?
But this is a different. Hello. Repeat it again. What is your Rosni? No, Ishwar. Yeah, sure. Yeah, sure. Said me. Sir, if the permission is given on database, in database security, if the user is created in database, then he can access the other instance, na database. How can I have given the one important thing? Every user have a one login associated. Here is here you see my screen. This is the user, na. I'm going to database. I'm Yes. simply going to database. Going to here. Going to security. Going to user. These are the username, na. Okay. But where is the my login? Where is the my It login? is this is instance level login, right? Yeah. Where is the my login? Every user will be have a one login associate. One login. Otherwise, if not, these are the, if in this case my SCS database have a these two user. These are the, if I am not associated this user to SA account or any account, that case these user will be a often user. Okay, these are the often user. Okay, if I am not associating this user to my any logins in system. Yes. हेलो. हाँ या सर. Yes, sir. योर सर आपका है ना वहाँ पे आवाज आ रहा है कुछ तो बैक मींस बैक एंड से. नहीं, मेरे एंड से तो कुछ है नहीं. नहीं क्या? मेरे एंड से नहीं, किसी और के एंड से. आप शायद आप सब लोग म्यूट कीजिए. यस, अब मेरे एंड से नहीं है शायद. मेरे एंड से है बाहर. ये चालू है, म्यूट पे रखिए मेरा कॉल. हाँ, म्यूट पे रखिए. कुछ इशू है. तो इसका मीनिंग ये है ऐश्वर्या और ये भाविका और आप सब लोग. अच्छा, भाविका ड्रॉप कर दी. हाँ, उस लेफ्ट हो गए आई थिंक. हाँ, तो उसमें क्या देखिए, मैंने आपको प्रैक्टिकली इसलिए समझाया कि अगर हम इस डेटाबेस में जो यूजर क्रिएट हैं दो, और इन यूजरों को किसी लॉगिन के साथ अगर अटैच नहीं करते या एसोसिएट नहीं करते, तो हमारे जो डेटाबेस लेवल के जो यूजर हैं उनको ऑफन यूजर बोलते हैं. इन ऑफर यूजर को फाइंड किया जाता है और फिक्स किया जाता है. ठीक है, अगर मैं सपोज फॉर एग्जांपल इस डेटाबेस में जाता हूँ और कनेक्ट करता हूँ, तो इसका यूजर नेम तो अलग होगा, मैं कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा ना, क्योंकि मैं तो किसी और लॉगिन से हूँ, एसोसिएट हूँ. अगर मैं इससे SCS टेस्ट डालूंगा फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ, सर्वर बनते हैं और मैं यहाँ पे ऐसे सिलेक्ट करता हूँ और ऐसे का मैंने यहाँ पे डालता हूँ SCS टेस्ट. ठीक है, और यहाँ पे इनको कनेक्ट SCS टेस्ट है और ऐसे. हाँ, तो मेरा पासवर्ड तो डिफॉल्ट मैंने सबका एक ही रखा है. Not connecting na, login fail. Default it's giving error login fail because no user associated to this na. So that case I need to fix that user. These are the called often user. How can fix? There are the some script we can do. First we find the often user na. For example, how to find often user your database. Okay, so these are the simple script. Copy and put into my database. Okay, I'm going to here test server 1, not a test server, SCS server 1. Select database name. Which is my database name? Which database I found often user? Can you even tell me? SCS test. Yes, SCS, because I found often user in this database na, not other. So that case I will be checking here action. There are two often user. Okay. So these often user need to fix. There are the two alternative way fix this. One is the change the password or reset na, or associate to login. Suppose there are two way fixing. One is the photo fixing, other is the username associated to this login na. Username, pattern, user and login to. I will provide any login name here, then it automatically fix and rename change the password. Okay. So I am going to here. First I go to this and put in this command fix often user. Update 1, then automatically be fixed. Here I put my login name. Suppose I might put my login name SA. My username will be SCS team, SCS test. Okay. If I put this, okay,
that case my this SCS user can be attached as a, okay. If anyone have a Means sir, doubt, you then will have the permission of SA, right? no, Or not it will just not given the permission. I will be just attaching the user. No, this Okay. user I will attaching my logins. Which login? SA login. If have ऐसे any लोग login, if you have any login, SA Kamal, which is your login to associate this user. For example, I will connecting here. Just give me one more clarity. I am going to the my test server. Test server. Okay. This, and this case I have given the details database and users and security, and just you check this one SGS property. In this case I will attach my user to login, one name SGS test. In this case my test server I have already created the test server. This test server already created the login name, which is the SGS test, okay. So that same thing I will be attaching here. Not creating, then I will be attaching this. If I creating user, then I can also attach this, okay. Anyone have a doubt or any question? sir, means can we only do sir. this? हाँ, Means why Yeah, go ahead. why do the means why they become orphan users and when they become orphan users? Yeah, हम्म, that case yeah. I tell you. I have already told practical example. So many team will be a developer will be connecting my database. Somebody have given that read permission, somebody giving the write permission, but one user associated to one login. That case, I have migrate my uh, database or backup on copy to other server or testing purpose. I have given to the production environment. Suppose I have testing database development completed. I move to my all the database, all the database into the my production environment. That case, I am not fixing to every user will be checking one by one. It's a often user or it's a fix this. So that case we can do this way, na. Or we can fix auto, Okay. okay. We can fix auto sp change user long, auto fix username. You can put on auto fix this one. After that you can change the username and password. Suppose I will be attaching this SA account. After that, this is my server one. I have done this will, and that case this user will be attaching to the SA account, okay. The termination SA is the login name parameter. This is procedure action update one test server. सर Yes, yes, हेलो. go ahead. Yeah, go हाँ, ahead. एक बार फिर से बताएंगे कि कब यूज होता है और मीन्स ऑफन यूजर का देखिए, आपको मैंने ये बताया था ना, जैसे ये टेस्ट सर्वर है, इस टेस्ट सर्वर मेरा कोई डेटाबेस बना है, इस डेटाबेस पे मैं बराबर. बहुत सारे यूजर बना सकते हैं। मैं डेटाबेस सभी को मैं सर्वर लेवल पे परमिशन तो नहीं देता, इंस्टेंस लेवल पे मोस्टली यूजर को हम डेटाबेस लेवल पे परमिशन देते हैं, ताकि यूजर डेटाबेस लेवल पे एक्सेस कर सके ना। अगर उस केस में हम बहुत सारे यूजर बनाते हैं और सपोज फॉर एग्जांपल एनी रीजन मैं अपना बैकअप लेके किसी और इंस्टेंस पर रिस्टोर करता हूँ, तो दैट केस में जो यूजर होंगे वहाँ पे जो लॉगिन होगा वो लॉगिन तो नहीं जाएगा ना, ये लॉगिन जो, तो उस लॉगिन को फिर एसोसिएट करते हैं ना किसी न किसी यूजर के साथ। ओके. एक लॉगिन को एक यूजर को एक लॉगिन के साथ एसोसिएट करते हैं, ओके. ठीक है। उसके बाद जब एसोसिएट होने के बाद तब उसको फिक्स करते हैं, ठीक है। एक तो वे ये है, दूसरा वे है ऑटो फिक्स, ठीक है। इसका ऑटो फिक्स किया मैं पहले क्या the assay of forbidden value of the login name parameter in this procedure, okay. Just give me 1 minute, I will check this if anything will be wrong. Auto fix username will be SGS set EEST test.
Yes, this invalid parameter was specified. Okay, I think this is not here. Using to master. Go this way. Okay, so this will be fixing now of an user. After that, we have need to change. How can change this? Go to the refresh command. And after that, I will check. This will be fixed. This instance I will run. Okay, server one. Okay. Then I will check my user. Go to this security and user. SES test. I will check this property. Which user will be associated? Na? General. This is default associate user without login. Na? Without them. So that case we need to create the associate to as per your need. Where you associate. Na? Go to this or generals. Put into the any user or member of member security search username this search this. Now I'm trying to connect to this one. Now I will check I'm connecting this database or not. If not, then I will be giving second thing. Now okay, I'm connecting to SGS with test which is the user just SGS test. Okay, give me 1 minute. Connecting. But again this will be not, so that case I need to delete this user, or you can also modify this way. Give me one more thing. Where the my procedure name? Yes, this way. Run this sp change user login. This way. User master. Get user name. This is the username. Password name will be SH forbidden value login name parameter. This terminator SH forbidden. Okay, just give me just. So that case I will be going to the my login. There is my login SA or login just security login. I am here creating any user, or for example this property, and this case server roles or user mapping. So we can do here user mapping. Select this user SCS or other users. Is this database? Then I am selecting this, which so that case we associate this user now. Then try to connect and change the password. Okay, browse this, and which is the permission db any test this or any user, like a suppose for example I will be connecting, this is the schema, not a schema, db owner. I will be giving the permission db owners. Okay, and any database this is associated to this user now directly as a db owner permission, and here give me the db read write permission, but whatever need to. Now you connect to SA login, then you can also change that password.
cannot special permission in essay. Okay, not given the special permission of essay. Give me one more thing. Server roles, public ad. Oh, say the system admin permission. Give me one. Yes. Here associate to. Just give me 1 minute. I'm creating one login. New login. Will be a okay, Kamal. Authentic essay. Password policy, server roles, video mapping, SCS database, DB owners, Kamal, and output. Okay, output to status enable, secure enable. Okay. Now this login to associate to Kamal and SA. Okay. Yeah. So that case, my new user will be creating as Kamal. This user can be fixed. This Kamal will be login to the as a SA. Suppose now that case I will be try to this. Okay, property. Okay, connecting and server one window authentication. So now that case I will be connecting my the database, which is the SCS database. Na? So we can do everything without, or we can necessary need to fix often user from the auto fixing. It's a necessary. Okay, but we can one user will be creating, or we can do it this way. I think this has been not much clear, na topic. Hello. Sir. Yes, sir. Not much clear, na. So that's why just one. Give me 1 minute. I will be taking care one other scenario. It will be a just give me 1 minute, one more minute. I will try to clear often user. Roles permissions. They are not often user. Search. Give me. Just give me 1 minute. I have forget fixing the open open. Okay, I need to copy SID from this database to current database and change the password name. This okay. User database name, user login, update one, username, geo. In case this will be also will be O. Okay. In that case, I'm going to here database login up. Okay. Yes.
username is test, name, and username. Okay. Okay. The login name already is defined, means इसका already login name defined. Suppose मैं एक और login create करता हूँ here. Just once I will be clarify the details. Login name will be a new window. Okay, this will be. Then you type permission to set user roles, public admin, servers false में video mapping SCS database, DB owners, status, yes, user does not have a permission to perform. Oh shit, मैं दूसरे यूजर से कनेक्टेड था ना, किस कमल से कनेक्टेड था, कमल से मुझे परमिशन नहीं ना इस पर कुछ भी चेंज करने की. I need to connect from the different users. Disconnected, connecting this way, sorry, yes, this way, and I want to change the creating one user, login, new login, demo, status enable, server roles public, or it's a different. Okay, now I am creating a new login which is named demo. I want to associate my this SCS into demo. So that case I am going to here put into SCS to demo. So demo which have permission demo user which will be seeing the SCS database. So that's why I am going to here connect this. This will be. So that case we if already define your user we can do it in the fixing this way. But my this case I have already done the, so that case not fixing, but now it's fixing. After that you are connecting demo, then you are connecting to SCS which have permission demo user that have a permission to the SCS account. Okay, so now I am trying to connect my demo, then I check whatever permission into demo my. Okay, I am going to here select demo and connect. Okay, now I'm connecting my demo database and demo user, not a demo database. This is a permission. Now this will be connecting to. Okay, so this way you can fix the offline user. Understand, everyone? Hello, भाविका. हाँ, यस सर, या समझ में आया आप लोगों को? अगर नहीं आया तो मैं एक बार रिपीट दोबारा से कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं है.
ठीक है। एक तरीका तो इसको फिक्स करने का ऐसे कि आप नया यूजर क्रिएट किए और ऑलरेडी क्रिएटेड यूजर है उसको परमिशन देके आप इस कमांड से फिक्स किए। हो सकता है मेरी जो कमांड मिसिंग थी ना वो पहले कहीं मैंने मिस लिख ली ना, मिसिंग लिख ली थी, तो इसको अपडेट कर देता हूँ। मिस कमांड लिख ली थी, ठीक है। इस वे से हम ऑफन यूजर को फिक्स कर सकते हैं। सेकेंड वे ऑफन यूजर को फिक्स करने का क्या होता है कि आप SID कॉपी करो। SID क्या होती है कि जो हमारा SGS टेस्ट का डेटाबेस है ना, जो इंस्टेंस 1 पे था ना, कौन से पे, ये SID ये यहाँ से मिलेगी आपको। जैसे मैं यहाँ पे जाऊँगा, कनेक्ट करूँगा, मैं गया सर्वर 1 पे, जो मेरा टेस्ट सर्वर था ना, जिसमें मेरा ओरिजिनल डेटाबेस था ना, जहाँ पे पहले से, ठीक है। तो मैं कनेक्ट करूँगा इसको और यहाँ पे गया टेस्ट सर्वर 1, जिसमें मैंने जहाँ से मैंने बैकअप लिया है SGS का, मैंने कहाँ से बैकअप लिया था, यहाँ से SGS। तो इसके अकाउंट से आप उस यूजर का वो स्क्रिप्ट जनरेट कर दीजिए, ठीक है। कैसे स्क्रिप्ट जनरेट करेंगे, जैसे मैं यहाँ गया मेरे इस डेटाबेस के अंदर, इस यूजर के अंदर, और ये मेरा सिक्योरिटी के अंदर मेरा यूजर था, ये था SGS टेस्ट, इसकी जनरेट की है, राइट क्लिक और न्यू स्क्रिप्ट, ठीक है। जब स्क्रिप्ट जनरेट करें, ये स्क्रिप्ट जनरेट, अब आपको इसकी SID भी पता करनी है। तो SID कैसे गेट करते हैं, SID गेट करने का तरीका है, आप फाइंड द ऑफन यूजर, क्रिएट लॉगिन विद ऑफन यूजर SID। ओके 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 ओके, जस्ट 1 second, change the report, can you fix open user by different method using with open user ID? Okay, user ID, use master database, create name, login name with password and SID. SID will be copying from there. Getting, just I want to getting my SID from that database. Okay okay, how to get SQL logins, SQL users. Okay, so this will be command running my existing server, which have this one, select start dot sys principles, this one, go. So here check one SID. Okay, my username is which one, test, SCS test user. This test user have this SID, so we can replace this SID. How to replace? Go to my new server, which is now my new server. My new server will be name will be this, and going to there, connect this and select this command, put this way, and I have fixed the often user from this method. There are so many way fixing often user, but I will tell you in 2 way, so we can fix often user na. This is my SID, copy here. Here I create any new user and password. Suppose I want to create any new user like a DBA. Okay, put into password login 123. Okay, and I want to this and okay, this way. So login name this way.
Yeah. So basically SQL user only the working from the SID, not name. मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, ये कहना चाह रहा हूँ कि जो हमारा एसक्यूएल यूजर होता है ना, कि हम नाम से वर्किंग नहीं करता, वो हर एक के लिए एसआईडी क्या यूनिक होती है, तो वो एसआईडी के व्याप पे ही ऑथेंटिकेट करता है किसी यूजर को किसी भी डेटाबेस पे। जब तक एसआईडी मैच नहीं करेगी तब तक वो ऑथेंटिकेट नहीं करने देगा। ठीक है, तो हमने एक नया यूजर बनाया, उसकी एसआईडी है तो वो फिक्स हो जाएगा। एसजीएस से कनेक्ट करोगे तो ट्राई होकर कनेक्ट, या डीबीए से कनेक्ट करोगे तब भी आपको कनेक्शन परमिशन देगा, या फिर हम उसी को एससीएस टेस्ट को यहाँ बना सकते हैं, बट एसआईडी मैंने उसकी वही रख दी जो एजिट पहले थी उसकी सेम। ठीक है, क्या मैं इसको नया डीबीए क्रिएट, तो एसआईडी से भी रिप्लेस कर सकते हैं और उसको वैसे भी कर सकते हैं। इस कमांड को थोड़ा सा मैं चलाने के लिए देख लेता हूँ कौन से। यस, रनिंग दिस ऑन मास्टर डेटाबेस। ओके, so they can be running this command on master database. So that case we also fix the often user na, two or multiple way. When you go to the searching how to fix often user, so many way, but I will be given two way how to fix often user. Method using the user id or sid which I copy from the their place. Second, using the update one command, this one, login name with password, or directly create login, just it this way, user database, change this one login name, update one simply. After that change this user password na, modify password. This is the auto fixing way which I have done the this way. I have done the two way. हेलो हेलो, मुझे नहीं समझ में आया ये कंसेप्ट ऑटो फिक्स, मतलब आप क्या बोल रहे हैं? अच्छा, एक ओके। जब ऑफन यूजर को फिक्स करने के दो मेथड, दो या तीन मेथड हो सकते हैं, मल्टीपल मेथड होते हैं ऑफन यूजर के फिक्स करने के। पहला मेथड था जो मैंने आपको बताया कि हम इसको ऑटो अपडेट करते ना। ऑटो अपडेट कैसे, हमने क्या किया कि जिस डेटाबेस में नया यूजर क्रिएट करना है या ऑलरेडी एक यूजर क्रिएट करके उसको फिक्स कर दिया। कैसे, ये हमारा पुराना वाला लॉगिन यूजर था उस डेटाबेस का, एक हमने नया यूजर क्रिएट किया, उस यूजर से इसको एसोसिएट कर दिया। ठीक है, तो जब डेमो से लॉगिन करोगे तो, क्योंकि इसमें तो डेमो बना नहीं ना, अब देखिए ना, इसमें डेमो नहीं बनाता ना, किसमें पहले जो आपका टेस्ट डेटाबेस ना था, इसमें डेमो तो नहीं था ना पहले से, इसमें डेमो कहीं नहीं था ना, नहीं ना। तो अब इस केस में हमने इसको फिक्स करने का तरीका क्या ढूंढ, दो तरीके हैं। या तो आप इसको क्या कीजिए, लॉगिन किया मैंने इस डेटाबेस में जो हमारा सर्वर 1 पे था, और उस डेटाबेस में मैंने क्या किया, एक यूजर बनाया, उसको एसोसिएट कर दिया डेमो से। देखिए यहाँ पे भी यूजर नहीं ना, डेमो है तो नहीं, लेकिन हम डेमो से लॉगिन करके इसको चेक कर रहे थे ना, अभी आपको बताया था मैंने। कनेक्ट करता हूँ मैं यहाँ पे दोबारा से, मैं क्या है यहाँ पे सर्वर 1 पे ऐसे से, और डेमो से मैं यहाँ से कनेक्ट करता हूँ। फिर भी हम टेस्ट एससीएस डेटाबेस को कनेक्ट कर सकते हैं ना, तो ये ऑफन यूजर फिक्सिंग हुई ना। देखिए ये मैं कनेक्ट कर रहा हूँ और ये मेरा डेटाबेस है एससीएस, और एससीएस डेटाबेस में गया मैं, और एससीएस डेटाबेस की टेबल्स हैं उनको सबको देख पा रहा हूँ। बट हाँ, आप देखोगे ना एससीएस में यहाँ पर डेमो यूजर नहीं बना होगा। क्यों नहीं बना, कि भाई हमने डेमो यूजर बनाया नहीं, उसको फिक्स किया ना ऑफन की तरह। देखिए कहीं बनाया डेमो यूजर, फिर भी हम फिक्स उसको देख पा रहे हैं ना, कर पा रहे हैं, वर्किंग कर पा रहे हैं। तो एक तो वो ये बे है जिसके थ्रू हमने फिक्स किया, किसके थ्रू, कि ऑटो फिक्सिंग ना करके हमने क्या किया, एक यूजर बनाया, उसको कुछ भी परमिशन दे दी, जैसे जो प्रीवियस परमिशन थी वो परमिशन दे दी, या हमारे सर्वर पर ऑलरेडी परमिशन बनी है। ठीक है, ऑलरेडी रीड राइट परमिशन बनी है, तो उस यूजर के हिसाब से आपको थोड़ा मोर क्लियर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, ये मेरा सर्वर 1 है, और सर्वर 1 पर मेरे कितने लॉगिन बने हैं अभी आप बताइए? 3 लॉगिन बने, डीबीए, डेमो, कमल, ये सब 3 लॉगिन बने। अभी तो मैंने इसको फिक्स कर रहा है एसआईडी से। अगर हम अब डीबीए से भी लॉगिन करेंगे ना, तो डीबीए से भी एससीएस डेटाबेस को चेक कर सकते हैं, जो अभी हमने रिसेंटली बनाया है ना।
पहला वे था कि हम डायरेक्ट उसको किसी यूजर के साथ एसोसिएट करें जो पहले से बना है। दूसरा, हम नया यूजर क्रिएट करें, वे वही है, पहले भी यूजर हमने उसमें भी क्रिएट कर रहे हैं, पासवर्ड उसमें भी हम डाल रहे हैं, या तो जीयूआई से डालें या टी स्क्रिप्ट से, बट यहाँ पे एसआईडी डाल रहे हैं, वहाँ पे ऑटो फिक्सिंग कर रहे हैं। इस वाले मेथड में हम ऑटो फिक्सिंग ही कर रहे हैं ना, इसमें अपडेट बंद कर रहे हैं इसको। इसका मतलब है कि एसजीएस टेस्ट की जगह डेमो यूज होगा। अपडेट बन का मतलब ये है, sp_change यूजर लॉगिन अपडेट वन, जहां पे एसजीएस टेस्ट डेटाबेस को जो परमिशन, जो चीज एक्सेस कर सकता है वो डेमो एक्सेस कर रहा है। ठीक है, दो तरीके होते हैं, एक तो ऑटो फिक्सिंग भी होती है और एक इस तरीके से। मेरी कमांड पहले गलत लिखी थी, इसलिए शायद में भी हमें वो नहीं दे रही। और फाइंड कैसे करते हैं ये मैंने बता दिया, कौन कौन से ओपन यूजर हैं। सेकंड पे मैंने बताया कि आप उसकी एसआईडी लेके आइए, कहाँ से, अपने टेस्ट, जो आपका सर्वर बना है ना, टेस्ट सर्वर, इस सर्वर से मैंने क्या निकाला था, एसआईडी निकाली थी। कैसे एसआईडी निकाली थी? एसआईडी निकालने का तरीका ये था ना, sys.sys प्रिंसिपल, आप जिस यूजर की फिक्स करना चाह रहे उसकी एसआईडी ये है ना, उसको एसआईडी के कॉपी की मैंने, उस एसआईडी को मैंने क्या किया, नया यूजर के साथ एसोसिएट कर दिया। ठीक है, तो उस पर वो वर्किंग करेगा। हेलो सर, आपने वो स्क्रिप्ट क्या बोली? sys.sys क्या? sys.sys प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स। हाँ, प्रिंसिपल मतलब इसमें जितने भी लॉगिन्स बने होते हैं ना, प्रिंसिपल होते हैं सर्वर लेवल पे। ठीक है, ओके। और So डेटा means sys.sys principal means select star from sys.sys principal डालने के बाद हमें SID नंबर मिलेंगे ना? हाँ, SID नंबर मिलेंगे। ये एसआईडी ये आपको यहाँ से मिल जाएगी। ओके फिर ओके एसआईडी ओके। के साथ आप इसको फिक्स कर सकते हो। ठीक है, ओके। मल्टीपल वे होते हैं, मतलब मल्टीपल वे से फिक्स कर सकते हैं ओपन यूजर को। बट मेरे को आज तक ऐसी सच नीड नहीं पड़ी कि मैं बहुत ज़्यादा ओपन यूजर फिक्स कर रहा हूँ। हाँ, कभी फाइंड होते हैं उसको एक या दो वे की तरह उसको फिक्स कर सकते हैं। इसमें दो मेथड दिए ना ओपन यूजर फिक्स करने के, टाइप 2 ऑटो फिक्सिंग विच आई हैव डन दिस वे, यूजर नेम नल लॉगिन below command. Autofix can be used even without creating login. Without creating login. Okay. Username, login, and username. Okay. इस केस सेकेंड मेथड क्या दे रहे थे ये लोग, लॉगिन ऑटो फिक्स। इसमें देखिए, तो लॉगिन कर रहे हैं, यूजर क्रिएट कर रहे हैं। आप जो भी मेथड बेटर लगे आप क्रिएट कर सकते हैं। मल्टीपल वे दिए इन्होंने, 3 या 4 वे दिए हैं ओपन यूजर फिक्स करने के। आपको इसमें कोई डाउट तो अभी आप पूछ लीजिए, कोई इशू नहीं है, मैं दोबारा रिपीट करने के लिए एग्री हूँ। हेलो। हाँ यस कोई डाउट? हाँ, स्नेल बताइए। अभी समझा हमें, पर अगर हाँ। कुछ हम लोग वापस पर वीडियो बता के अगर कुछ इश्यू होगा तो कल बताए तो चलेगा क्या? हाँ, कोई इशू नहीं। आप देखिए, ऐसा नहीं कि मैंने आपसे आज करा दिया तो आप कभी दोबारा पूछ नहीं सकते, ऐसा नहीं होता ना। मैं तो आज पढ़ लिया, उसके 2 मंथ बाद भी पूछता हूँ ना, कभी किसी से भी अगर मेरे को नहीं समझे तो पूछने कभी भी पूछ सकते हो ना, उसमें कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए ना। हो सकता है कि उस टाइम पे मैं कुछ नहीं पिकअप कर पाया, बाद में पिकअप किया, या बाद में समझ में नहीं आया, तो वो ऐसा होता है ना, उसमें ऐसा कोई नेसेसरी नहीं कि आज के आज पूछना। आप थोड़ा सा ट्राई करो प्रैक्टिकल। ओपन यूजर होते क्या है, मैंने आपको बता दिया कि जब एक डेटाबेस में हम यूजर बना देते हैं, उस डेटाबेस का बैकअप ले लिया और और वहाँ पर रिस्टोर कर दिया, बट वो उस यूजर को किसी लॉगिन के साथ एसोसिएट नहीं है, तो उस टाइप के यूजर को ओपन यूजर कहते हैं। अब जैसे मैं अभी कमांड चलाऊं, जो ओपन यूजर की मैं चला रहा था ना कुछ टाइम पहले, कौन सी, ये फाइंड करने ओपन यूजर को कैसे फाइंड करते हैं, तो अब मेरा सिर्फ एक ही ओपन यूजर दिखाएगा। कौन सा दिखाएगा? अगर मैं इसको कमांड को अभी चलाता हूं उस डेटाबेस में, किस पे, इस डेटाबेस में जाता हूं, और मेरा सर्वर कौन सा था, ये सर्वर 1 था इसमें, और न्यू कमांड क्वेरी करता हूं, और मैं इसको, अब मेरा सिर्फ एक ही ओपन यूजर मिलेगा। कौन सा?
जो मेरा ऑलरेडी बना है, ये रहा SES टीम। हमने कौन सा फिक्स किया था? SES टेस्ट फिक्स किया था। ठीक है, कैसे पता है आपको? देखिए हमें यहाँ पे मल्टीपल वे में देखिए SES टेस्ट को फिक्स कर रहे थे ना, दो तीन तरीके से हमने फिक्स किया। एक लॉगिन क्रिएट करके, एक DBA का क्रिएट करके। इसमें लॉगिन क्रिएट कर रहे हैं, उसमें विदाउट लॉगिन के फिक्स कर रहे हैं। कमांड कहाँ है ये? यस, दिस विल बी ट्राइंग टू क्लोज दिस एंड दिस विल बी यस। इस यूजर को हमने फिक्स किया था SES टेस्ट को SID के थ्रू, SID लेके। देखिए ऑटो फिक्सिंग दिस पे। आई विल बी शेयरिंग दिस कमांड सून। ओके, अब सेकेंड स्टेप, जब तक आपको क्लियर ना हो तब तक आप पूछ सकते हो, कोई ऐसा हेजिटेशन नहीं है कि मैंने आज पढ़ा दिया तो आज की आज ये कंप्लीट हो गया, ऐसा नहीं होता ना कहीं भी। ठीक है, तो आपको ये आई थिंक अब समझ में आया होगा कि ऑफन यूजर होते क्या है ना। जैसे ठीक है, अब मैं आपको लेके चलता हूँ डेटाबेस रोल्स क्या होते हैं। डेटाबेस के, एक डेटाबेस है उसके पे क्या क्या रोल, क्या क्या परमिशन दे सकते हैं। अभी तक हमने इनको डिटेल्स में नहीं डिस्कस किया ना, क्या डेटाबेस रोल पे क्या दे सकते हैं, सर्वर रोल पे क्या दे सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे किसी भी टेस्ट डेटाबेस पे हूँ, ठीक है, इन सबको डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं टेस्ट डेटाबेस पे हूँ। आप इसमें देखिए सिक्योरिटी में लॉगिन्स पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे मैंने जो यूजर क्रिएट वो है, लेकिन आप सर्वर रोल्स चेक करोगे ना तो देखिए आपको क्या क्या मिलेंगे। आपको सिस एडमिन मिलेगा, सेटअप एडमिन मिलेगा, सर्वर एडमिन मिलेगा, सिक्योरिटी एडमिन मिलेगा, और पब्लिक मिलेगा, डिस्क एडमिन, और प्रोसेस एडमिन, DB क्रिएटर, बल्क एडमिन। देखो अब ये सर्वर रोल होते हैं, ये कौन से हैं? 9 या 10 इनको बोलते हैं। पब्लिक को छोड़ दो तो ये कितने होते हैं? 10 होते हैं, 3 6 2 8 9 फिक्स सर्वर रोल्स होते हैं। ठीक है, इनका हर एक का अलग अलग परमिशन होती है, हर अलग काम होता है। देखिए सपोज मैं यहाँ पे जाता हूँ, इसी DBO को लेता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, प्रॉपर्टी पे जाता हूँ, ठीक है, आपको बताता हूँ, सर्वर रोल्स पे जाता हूँ। अभी मैंने क्या दिया है इसको? प्रोसेस एडमिन दिया है ना। पब्लिक करता हूँ मैं, और मेरे DBA से मैं कनेक्ट करके देखता हूँ मुझे क्या मिलेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको पब्लिक किया, ठीक है, अब मैं DBA से कनेक्ट करता हूँ, डिसकनेक्टेड दिस कमल, और मैं DBA का मैंने पासवर्ड क्या डाला था? लॉगिन 123 ना। यस, डिसकनेक्टिंग। अब आप इसको मैं एक एक रोल्स को डिटेल्स में लेके चलूँगा ताकि थोड़ा सा सही रहे। यस, DBA में मैंने किया, ठीक है। अब देखिए इसमें जितने भी डेटाबेस बने होंगे आप क्या कर सकते हो? परमिशन नहीं है आपको। क्यों परमिशन नहीं है? भैया आपने वहाँ पे सिर्फ पब्लिक रोल दिया है, पब्लिक रोल कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ लिस्ट सी कर सकता है कि कितने डेटाबेस बने हुए हैं। ठीक है, सर्वर रोल पे, सर्वर लेवल जिसको बोलते हैं इंस्टेंस लेवल, एक सर्वर पे हम ये परमिशन दे रहे हैं इसको, इस यूजर को, इस लॉगिन को। ठीक है, तो जब उसको परमिशन नहीं तो वो कुछ नहीं कर सकता ना। अब इसी में मैं कनेक्ट करता हूँ वही, जिससे मैं परमिशन को मॉडिफाई कर सकता। और आपको एक चीज़ और बता दूँ कि आपको अगर आप एक स्मॉल परमिशन है, जैसे आपको यहाँ पे परमिशन है किसकी? सिर्फ पब्लिक की। आप चाहोगे अपने खुद की परमिशन को चेंज तो नहीं कर सकते, आपको आपसे हायर रोल वाला परमिशन चेंज कर सकता है, वो भी सिस एडमिन और जिसको बोलते हैं सिक्योरिटी एडमिन। अगर वो दो तरीके के परमिशन होगी आपके यूजर को तो चेंज कर सकता है DBA की परमिशन, ये वाली इस वाले यूजर लॉगिन की परमिशन, अदरवाइज आप नहीं कर पा सकते। तो मैं क्या करता हूँ, अभी कनेक्ट करता हूँ, या मैं पहले आपको बताता हूँ, मैं अपनी परमिशन चेंज करना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पे गया, मैं DBA की परमिशन चेंज करना चाहता हूँ। ठीक है, DBA से ही लॉगिन हूँ, DBA की परमिशन चेंज करना चाहता हूँ। सर्वर रोल्स में गया, मैं यहाँ पे सिस एडमिन दे रहा हूँ, ठीक है, और ओके कर रहा हूँ। क्या दे रहा है मेरे को? कैन नॉट अल्टर द सर्वर रोल एज में बिकॉज इट डज नॉट एग्जिस्ट, यू डू नॉट हैव ए परमिशन। मतलब आप सिस एडमिन नहीं हो ना, जो सिस एडमिन होगा उसी को परमिशन होगी कि सर्वर रोल को परमिशन मॉडिफाई करने की। अच्छा। ओके, जैसे हम क्या करते हैं कि जैसे बहुत सारे अकाउंट बना देते हैं,
ठीक है, क्या करते हैं कि रियल टाइम सिनेरियो में आपको समझाता हूँ। मेरी कंपनी में 10 लोग हैं, 10 DB हैं, ठीक है, और कुछ लोग होते हैं जो सपोर्टिंग टीम के बंदे होते हैं, उनको क्या करना होता है, वो जस्ट चेक करके बताते हैं। L1 के बंदे होते हैं, जस्ट चेक करके बताते हैं कि सर मेरा इस डेटाबेस अभी मेरे सर्वर पे ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन चलता है, तो 10 डेटाबेस रिस्टोर हुए हैं या नहीं। वो सिर्फ कुछ नहीं करना, उनको परमिशन ही नहीं देते, वो जस्ट चेक करते कि मेरे 10 डेटाबेस रिस्टोर हुए या नहीं। तो हम क्या करते हैं, एक लॉगिन बनाते हैं, तो उसको जस्ट पब्लिक परमिशन देते हैं, वो चेक कर लेगा हाँ 10 डेटाबेस बने हैं या नहीं बने। सिंपल सी स्टेट पर वो ना तो कोई चेक कर सकता है ना कुछ कर सकता है, ठीक है। और आपको परमिशन डिफाइन करनी है तो परमिशन आप सर्वर रोल से डिफाइन कर सकते हो। हायर लेस जिसको सिस एडमिन होगी वही परमिशन को दे सकता है। तो मैं यहाँ पे फिर से जाता हूँ, अपने सिस एडमिन परमिशन मेरे किस यूजर को थी, विंडो ऑथेंटिकेशन में गया, मैं यहाँ पे गया और मेरे यहाँ पे जिस यूजर को सिस एडमिन की परमिशन थी, कौन सा, विंडो ऑथेंटिकेशन, ये मेरा कमल है, इसको परमिशन आपको चेक कर देता हूँ। देखिए इसको सर्वर रोल पे सिस एडमिन की परमिशन है, इसलिए ये सब कुछ कर सकता है। अगर इसको भी सिस एडमिन परमिशन ना दूं तो ये भी कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। या इसको मैं दूं सिक्योरिटी एडमिन, ठीक है, सिक्योरिटी एडमिन एक दूसरे यूजर को परमिशन दे सकता है, मॉडिफाई नहीं कर सकता। एक दूसरे यूजर को क्रिएट करके परमिशन दे सकता है, मॉडिफाई सिर्फ सिस एडमिन ही कर सकता है। अगर मैं किसी यूजर को सिस एडमिन देता हूँ, सिक्योरिटी एडमिन, और इसको मैं ओके करता हूँ, तो जब ये यूजर क्या करेगा, तो दूसरा यूजर तो क्रिएट कर सकता है बट उसको मॉडिफाई नहीं कर सकता परमिशन को, ठीक है, जब तक इसको सिस एडमिन परमिशन वो परमिशन नहीं होगी। तो मैं आपको इसको सिस एडमिन ही रहने देता हूँ, ओके। देखिए इसने बोला कि भैया आप खुद अपने आप को परमिशन कैसे दे रहे हो, कमल कमल, मैंने इसको सिक्योरिटी एडमिन कर दिया था ना, ओके, कैंसिल, रिफ्रेश। जब तक किसी यूजर को सिस एडमिन परमिशन नहीं है तब तक वो कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। आपको ये थोड़ा सा ये चीज़ देखिए, मैं ये इसको डिटेल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये हैं सर्वर रोल्स ना, कि सिस एडमिन क्या कर सकता है, रोल मेंबर कैन परफॉर्म ऑल द एक्टिविटी ऑफ पॉसिबल ऑन द डेटाबेस इंजन इंस्टेंस यू स्पेशली इनिशियली द मेम ऑफ दिस रोल व्हेन परफॉर्म द इंस्टॉलेशन। जब आप इंस्टॉलेशन करते हो तो जो यूजर आपने डाला होता है उसको बाय डिफॉल्ट सिस एडमिन परमिशन मिलती है, या डिफॉल्ट जो ऐसे अकाउंट होता है उसको सिस एडमिन परमिशन होती है, ठीक है। किस 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 को होती है, जब आप एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल करते हो उस टाइम पे आपने जो यूजर डाला होगा, जैसे मैंने डाला कमल कमल, मेरा कमल था ना विंडो एक्टिव डायरेक्टरी से, ये वाला यूजर, इसको इस वाले मेरे यूजर को सिस एडमिन परमिशन बाय डिफॉल्ट मिली थी। किसको, लॉग, ये सर्वर यहाँ पे लॉगिन्स पे गया और इसको डिफॉल्ट परमिशन सिस एडमिन मिली थी, लेकिन अगर मैंने अभी इसको मॉडिफाई की होगी तो मेरी परमिशन चेंज होगी, पब्लिक है अभी, ठीक है। मैं इसको चेंज करता हूँ, ओके करता हूँ, तो नहीं होगा। अब मुझे किससे लॉगिन करना पड़ेगा, मैं ऐसे से लॉगिन करूँगा तब इस यूजर की परमिशन को मॉडिफाई कर सकता हूँ, अदरवाइज नहीं कर पाता, क्योंकि मैंने एक बार इसको पहले सिस एडमिन था, सिस एडमिन से मैंने इसको क्या किया, पब्लिक कर दी परमिशन, इसलिए नहीं कर पा रहा मैं, ठीक है। अब इसकी परमिशन देखिए, प्रॉपर्टी में जाएंगे, सिस एडमिन में, सर्वर रोल्स में इसकी सिस एडमिन है, इसके थ्रू अब आप चेक कर सकते हो इसको, इसकी परमिशन को मॉडिफाई कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ ऐसे अकाउंट से, फॉर एग्जांपल मैं ऐसे से गया और ऐसे से कनेक्ट किया, और पासवर्ड आपको मेरा ऐसे से गया, मैं ऐसे से लॉगिन करने के बाद मैंने इसकी सिक्योरिटी में गया और यहाँ पे लॉगिन पे गया, तो मैं कमल की परमिशन को चेंज करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, क्योंकि मैं ऐसे से लॉगिन हूँ, तो सर्वर रोल्स में मैं इसको सिस एडमिन दे सकता हूँ। देखिए चेंज होगी परमिशन, हेलो,
हेलो। हाँ सर। यस सर, यस सर। हाँ, हाँ मैं इसको आपको प्रैक्टिकली इसलिए बता रहा हूँ कि आपको रियल टाइम में ऐसे इशू फेस करने पड़ सकते हैं, तो बाय द प्रैक्टिकली मैं करेक्ट लेके चल रहा हूँ। मैं थियोरटिकली तो मैंने आपको कल बता दिया था ये कैसे करना है, क्या करना है। सर्वर एडमिन है, सिक्योरिटी एडमिन है, प्रोसेस एडमिन है। अब इस तरीके से ये डिस्क एडमिन होता है। जो डिस्क एडमिन का जिसको राइट देते हैं वो क्या करता है, सिर्फ ओनली मेंबर कैन इंस्टेंस रिलेटेड फाइल, वो जो मैनेज कर सकता है, जैसे डेटा फाइल है, बैकअप फाइल है, उसकी लोकेशन को, उन सबको मैनेज कर सकता है। इसी तरीके से अगर मैंने किसी यूजर को बल्क एडमिन दिया है तो बल्क में इंसर्ट, अपडेट, डिलीट कर सकता है। बल्क इंसर्ट कर सकता है, अपडेट कर सकता है, डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। अगर सेटअप एडमिन दिया है तो वो सिर्फ ओनली कैन एडिट लिंक सर्वर, एड मेंबर ऑफ लिंक सर्वर, डेटाबेस इंजन इंस्टेंस पे कुछ परमिशन कर सकता है। लिंक सर्वर में आपको बताऊंगा, एक सर्वर से दूसरे सर्वर के बीच में कनेक्शन करके डेटाबेस को गेट करना, इंसर्ट करना और अपडेट करना कर सकते हैं। जैसे अभी हम इन दो सर्वरों के, एक सर्वर ये रहा मेरा टेस्ट सर्वर 1 है और दूसरा सर्वर मेरा क्या है, सपोज डिसकनेक्टेड है, दूसरा सर्वर मेरा टेस्ट सर्वर 2। ठीक है, ये मेरा दूसरा सर्वर। इन दोनों के बीच में सपोज यहाँ पे भी कोई डेटाबेस बना है, ठीक है, यहाँ पे भी कोई डेटाबेस, तो मैं इन दोनों के बीच में क्वेरी कोई एसक्यूएल स्टेटमेंट लिख रहा हूँ और उसको डेटा को गेट करना चाहता हूँ। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ मेथड होते हैं, या क्या क्या मेथड होते हैं, या तो हम क्रॉस क्वेरी लिखें या लिंक सर्वर बनाएं। तो सबसे सुटेबल मेथड होता है लिंक सर्वर बनाना, या डेटाबेस का रेप्लिकेशन करना, या लॉग स्प्रिंग और अदर थिंग की है तो वो। ठीक है, तो हम लिंक सर्वर से एक सर्वर का डेटा दूसरे सर्वर के डेटा पे गेट कर सकते हैं। बट परमिशन है, उसके लिए कंडीशन है कि आपका एटलीस्ट मिनिमम सेटअप एडमिन परमिशन होनी चाहिए। सिस एडमिन तो कुछ भी कर सकता है सर्वर पे, कुछ भी कर सकते हैं, बट आप एटलीस्ट आप चाहते हैं किसी यूजर को सिर्फ लिंक सर्वर बनाने की परमिशन दूं, तो उसको सेटअप एडमिन आपको परमिशन देनी पड़ेगी। ठीक है, ओके ओके। एटलीस्ट। ऐसे ही सिक्योरिटी एडमिन क्या कर सकता है कि ये एक दूसरे यूजर को क्रिएट कर सकता है, उसकी परमिशन मॉडिफाई नहीं कर सकता। ठीक है, ये क्या कर सकता है, असाइन टू रोल दिस लॉगिन मस्ट बी एबल टू मैनेज द इंस्टेंस लेवल परमिशन। इंस्टेंस लेवल परमिशन कौन सी होती हैं, ये रही, ये देखिए, ये होते हैं जो एसक्यूएल इंस्टेंस के अंडर आते हैं, इनको बोलते हैं इंस्टेंस। सिक्योरिटी के अंदर जो आप डेटाबेस के अंदर जाओगे, फिर इसके अंदर ये आपका होता है सिक्योरिटी, इसके अंदर आते हैं यूजर्स, इनको बोलते हैं डेटाबेस लेवल परमिशंस। ठीक है, इसमें भी परमिशन होती हैं कौन कौन सी, देखिए डेटाबेस लेवल पे भी आपको 11 या 9 रोल होते हैं। ये देखिए, एक्सेस एडमिन, बैकअप ऑपरेटर, डीबी रीडर, डीबी राइटर, डीडीएल एडमिन, डिनाई रीडर, डिनाई राइटर, डीबी ओनर, सिक्योरिटी एडमिन और पब्लिक जस्ट लाइक एज इट इज, वो सिर्फ चेक कर सकता है क्या क्या ऑब्जेक्ट बने हैं। जैसे मैंने अभी आपको इंस्टेंस लेवल पे पब्लिक बताया था कि वो सिर्फ डेटाबेस को चेक कर सकता है, ऐसे ही ये यहाँ पे अगर डेटाबेस लेवल पे किसी को पब्लिक बना दिया है तो वो सिर्फ कितनी टेबल हैं, कितने प्रोसीजर है, वो उनको देख सकता है, कोई क्वेरी और कुछ कमांड नहीं चला सकता। ठीक है, कंपेयरिंग करके आप पढ़ोगे तो थोड़ा सा इजीली आएगा ना अंडरस्टैंड। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैंने आपको सिक्योरिटी एडमिन, प्रोसेस एडमिन बताया, रोल मेंबर कैन टर्मिनेट प्रोसेस। कैसी प्रोसेस, जैसे ये देखिए मैंने आपको बताया था कोई सर्वर है जिसपे बहुत सारी प्रोसेस चल रही हैं। ठीक है, तो आपको एसपी हूटू से आप कमांड देखते हो, आपको सेशन मिलता है जो बहुत टाइम से चल रहा है। जैसे सपोज मान लो मेरा सेशन ये है, या यहाँ पे डिफॉल्ट सेशन आईडी 78 चल रही है या 79 है, अबेटिंग कमांड है या कुछ भी है। अगर ये आप इसको किल करना चाहते हो, किल कैसे करते हैं, सेशन को किल करके 79 करना, तो ये 79 है, 78, इनको किल करना, तो आपको एटलीस्ट क्या परमिशन होनी चाहिए, प्रोसेस एडमिन परमिशन होनी चाहिए। ठीक है, हेलो, यस सर। आई होप हाँ सर, समझ में आ रहा समझ में आ रहा या होगा आई होप। हाँ हाँ, ठीक समझ है, में आ रहा है। यस सर। उसके बाद होती है इसमें डीबी रीडर,
ये क्या कर, डीबी क्रिएटर, अगर हम किसी यूजर को डीबी क्रिएटर परमिशन देते हैं तो वो डेटाबेस को क्या कर सकता है, क्रिएट कर सकता है, अल्टर कर सकता है, ड्रॉप कर सकता है, रिस्टोर कर सकता है, ठीक है। बट आप चाहो कि डीबी क्रिएटर कोई टेबल क्रिएट कर दे, नहीं कर पाएगा, सिर्फ वो डेटाबेस को ही क्रिएट कर सकता है। जैसे मैं यहाँ पे किसी यूजर को, जैसे ये यहाँ पे एक यूजर है, सपोज पूरा एग्जांपल, मेरा सर्वर वन है, सर्वर वन पे मेरा सिस्टम सिक्योरिटी में डीबीए बना, ये डेमो बना ना, डेमो को मैं प्रॉपर्टी पे गया, इस डेमो को मैं क्या करता हूँ सर्वर रोल्स पे मैंने इसको दे दिया डीबी क्रिएटर, ठीक है, और इसको ओके कर दिया। अब मैं डेमो से लॉगिन करता हूँ। आपको कैसे पता पड़ेगा कि मैं कौन से यूजर से लॉगिन हूँ ना, आप कैसे बताओगे? हेलो, हाँ कैसे पता जैसे आप बहुत सारे यूजर से लॉगिन हो तो आप कैसे चेक करोगे मैं किस यूजर से लॉगिन हूँ विदाउट आपको उसको कुछ देखिए मैं आपको बताता हूँ। आप जब यहाँ पे आपको दिखेगा ना ऐसे साइट में, तो मैं अभी ऐसे से लॉगिन हूँ। हाँ। ये यहाँ पे कमल दिख रहा है, तो ओके, कमल से दूसरा आपको यहाँ पे भी दिखेगा, ये नीचे, ठीक है, ऐसे तीसरा आपको यहाँ पे भी दिखेगा, ओके। आपको मल्टीपल हाँ, प्लेस हाँ। पे दिखेगा। आपको एटलीस्ट 3 प्लेस पे दिखता है कि आप किस यूजर से लॉगिन हो, किस यूजर से काम कर रहे हो, ठीक है। ओके। जब भी आप न्यू क्वेरी विंडो ओपन करोगे तो आपको 3 जगह दिखेगा, ठीक है। मैं इस पे जाता हूँ और न्यू क्वेरी विंडो ओपन करता हूँ, तो देखिए मेरे को यहाँ पे भी कमल जस्ट 10 to 15 मिनट प्रेस करता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको ये यहाँ पे दिखेगा, आपको यहाँ पे भी दिखेगा कमल कमल, और आपको यहाँ पे भी दिखेगा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये तो मैंने क्या रोल दिया था, आप बताओ, डीबी क्रिएटर दिया था ना डेमो को, तो मैं अभी डेमो से लॉगिन करना चाह रहा हूँ। मैं करता हूँ डेमो से लॉगिन। मेरा सर्वर कौन सा था, वन, सर्वर वन पर मैंने डेमो यूजर को परमिशन दी, सर्वर वन, ओके। डेमो अब डेमो वन से मैं इस डेटाबेस का अगर बैकअप लेना चाहूँ तो ले सकता हूँ क्या, बताइए आप मेरे को, बताइए। क्या सर, डेमो क्या क्या डेमो वन से क्या क्वेश्चन डेमो क्या वन था? से मैं एससीएस डेटाबेस का बैकअप ले सकता हूँ क्या? डेमो वन से एससीएस का ले सकते हैं। नहीं, क्यों नहीं ले सकते, रीजन है, मैंने डेमो वन को मॉडिफाई किया था ना, क्या परमिशन दी थी, डीबी क्रिएटर। हाँ, या यस, मैंने डेमो वन को क्या परमिशन दी थी, डीबी क्रिएटर, और डीबी क्रिएटर को राइट नहीं है कि वो आपका बैकअप ले सकते। बैकअप लेने की परमिशन जो होती है वो होती है किस वाले यूजर को होती है, ये देखिए, सिस एडमिन को, और एक क्या, सर्वर एडमिन, सर्वर एडमिन, हाँ। ठीक है। ओनर को नहीं रहती क्या सर? क्या डीबी ओनर को नहीं रहती क्या? डीबी ओनर होता है डेटाबेस लेवल पे, मैं अभी ये डिस्कस कर रहा हूँ सर्वर लेवल पे। ओके ओके ओके। डी देखिए मैंने आपको बताया ना, फिक्स 9 तो ये सर्वर रोल होते हैं, और 9 और 11 आपके वो होते हैं कौन से, ये देखिए डेटाबेस रोल्स। हाँ। तो मैं आपको दोनों चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ना। ये आपके फिक्स 9 होते हैं, जैसे ये रहा, ये आपके डेटाबेस में सिक्योरिटी में जाओगे तो यहाँ पे आपके रोल्स देखेंगे, इस डेटाबेस, ये आपके डेटाबेस पे रोल होते हैं, डीबी ओनर्स होता है, सिक्योरिटी एडमिन होता है, डीबी रीडर होता है, डीबी राइटर होता है, डीडी एडमिन और डीडी राइटर, ये सब परमिशन। बैकअप ऑपरेटर, अगर बैकअप ऑपरेटर परमिशन दोगे तो बैकअप ले सकता है वो, ठीक है। मैं अगर अभी चाहूँ बैकअप लेना तो मैं ट्राई करता हूँ, मैंने परमिशन इसको क्या है, देखिए मैं डेमो से लॉगिन था और डेमो को परमिशन मैंने दी डीबी क्रिएटर की, और डीबी क्रिएटर से मैं बैकअप लेना चाह रहा हूँ। मैं देखता हूँ पॉसिबल है क्या, मैं भी हिट एंड ट्राई कर रहा हूँ। ओके किया, रिमूव किया, आई थिंक मेरे ख्याल से वे परमिशन नहीं होनी चाहिए, मतलब बैकअप लेने की।
डीबी क्रिएटर, क्योंकि वो डीबी को क्रिएट कर सकता है, फाइल को बैकअप और मैनेज नहीं कर सकता। ये मैंने फाइल का नाम रखा ओके ओके, और डीबी क्रिएटर से मैं परमिशन नहीं है, ठीक है। द बैकअप डेटाबेस परमिशन डिनाई इन डेटाबेस SGS, क्योंकि मैं डेमो से लॉगिन हूँ, ठीक है। आपको इसमें कोई डाउट और कोई कुछ और? मैं आपको फिक्स ये आपको सर्वर लेवल रोल्स बता दिए, मैं आपको डेटाबेस लेवल रोल भी आपको अभी समझा देता हूँ, या फिर मैं आपको नेक्स्ट कर लूँ, क्योंकि मैं डिटेल्स में ही समझाऊंगा, मैं ऐसे नहीं जाऊँ। हाँ नेक्स्ट चलेगा सर, कर ले कर। हाँ हाँ, नेक्स्ट में। मैं कल मेरा छुट्टी है, तो आप कल जो भी टाइम बोलोगे उस टाइम पे क्लास ले लेंगे। आप लोग बता दीजिए किस टाइम। कल भी लेने वाले क्या सर क्लास? सैटरडे संडे ऑफ है ना? नहीं, आप लोगों ने बोला था कि सैटरडे मेरी एक क्लास, एक वीक में क्लास छोटी थी ना, तो उस बीच में हम इसको कंप्लीट करा देते ना आप लोगों का। ठीक है चलेगा। आप लोग बता दीजिए टाइम सुटेबल। मैं तो कल वैसे भी एक्टिविटी कर रहा हूँ, क्या मेरे यहाँ तो कल क्या बोला मैं, कल तो मैं फुल डे वर्किंग हूँ, पैचिंग एक्टिविटी कर रहा हूँ, ओके, तो मुझे तो कोई इशू नहीं है। रात को ही लेना सर, फिर मैं रात को ही फ्री हूँ नहीं, मैं तो आपको पैरेलली बता सकता हूँ, मुझे तो पैचिंग टीम को लगा के छोड़ दूंगा, टीम देखती रहेगी, कोई इशू आएगा तो मेरे को अपडेट करेंगे। ठीक है चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं, कर ले लो। कर ले लो फिर इसको परमिशन, ये मतलब आपको सिर्फ डेटाबेस रोल समझाने हैं, मैंने सर्वर लेवल रोल तो आपको समझा दिए ना। ओके ओके सर, फिर कल आप ना शाम को यार, शाम को लेंगे तो चलेगा, शाम या रात को? आप मेरे को बता दीजिए, वो टाइम पे मैं ले लूंगा, आप बस मेरे को हाँ बता हाँ, चलेगा चलेगा, ओके। दीजिए, ठीक है। ठीक है, तो ये मैंने आपको फिक्स 9 समझा दिए, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे, क्योंकि मैं यस सर, सबको डिटेल्स में इतना नहीं जा सकता, लेकिन हाँ फिर भी मैंने आपको समझा। जैसे ये है, एक यहाँ पे एक यूजर है सर्वर एडमिन, ये सिर्फ क्या कर सकता है, कॉन्फ़िगर कर सकता है। जो SP_ कॉन्फ़िगरेशन बताया था ना, अगर आपने इसको परमिशन दी तभी ये कॉन्फ़िगर कर पाएगा। आपने इससे नीचे की परमिशन दे दी और आप चाहते हैं SP_ कॉन्फ़िगरेशन चला के मैं कोई जो पैरामीटर चेंज किए थे हमने, कि एडवांस पैरामीटर इनेबल किया था जिसमें 85 पैरामीटर हो गए थे, सो एडवांस इक्वल टू 1 किया था, आपको रिमेंबर होगा। पहले डिफॉल्ट 25 थे, उसके बाद हमने इनेबल करके 85 हुए थे हमारे। आपको रिमेंबर नहीं है? नहीं रिमेंबर है? देखो मैं बताता वो हूँ। क्लास देखिए मैं आपको बता दूँ, जैसे मैं इस यूजर से लॉगिन हूँ और मैंने आपको ये चलाया था ना SP_FIGUR कॉन्फ़िगरेशन SP_ कॉन्फ़िगर था स्पेलिंग इज रॉन्ग। F GUR GUR इसको मैं चला रहा था ना, तो आपको जो पैरामीटर हम्म, दिख रहे हैं अभी 25 दिख रहे हैं ना, क्योंकि हाँ अगर हाँ आप हाँ, अगर आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मैंने बताया था, कौन सा, शो एडवांस करके, अगर आपको ये इस वाले पे शो एडवांस इक्वल टू 1 आप तभी चला सकते हो जब आपको क्या परमिशन होनी चाहिए, एटलीस्ट सर्वर एडमिन, एडमिन। सर्वर एडमिन। यस, रोल मेंबर कैन परफॉर्म इंस्टेंस वाइड कॉन्फ़िगरेशन, लाइक ए मेमोरी सेटिंग करना है, कितनी मेमोरी देना है, कितने कोर यूज करने हैं, कितने CPU यूज करना है, ये सब सर्वर एडमिन कर सकता है। इसके साथ साथ सिस एडमिन को भी फुल परमिशन होती है। सिस एडमिन एनीथिंग कर सकता है, किसी भी सर्वर पे सिस एडमिन कुछ भी कर सकता है, ठीक है। आप 5 मिनट और ले लें तो फिर इसको फिनिश कर देते हैं, नहीं तो फिर कल करेंगे। कल करना सर अभी चलेगा ठीक, कल। चलिए हाँ ठीक है, ओके चले, मेरी भी ओके शूट चालू है अभी, तो हाँ ठीक है। ठीक है। फिर मैं कल आपको ये डेटाबेस लेवल रोल बता देता हूँ जो SQL सर्वर के, उसके बाद हमारा ये 4th मॉड्यूल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है।
और इसमें आपको कोई डाउट हो फिर हम बैकअप रिस्टोरेशन, उससे पहले आपको डेटाबेस के कितने मोड होते हैं वो बताएंगे ना, ठीक है। हाँ अच्छा टॉपिक है, बैकअप कैसे लेते हैं, रिस्टोर कैसे करते हैं, ट्रंकेट लॉग फाइल और ये सब चीज़ें। ओके ओके। राइट इम्पोर्टेंट है। और कुछ मिस तो रह गया तो आप मेरे को बता देना इसमें। वैसे तो मैं हाँ इनको हाँ हाईलाइटेड करता जाता हूँ, जो भी अगर कोई मिस होता है तो हाईलाइटेड कर देता हूँ, बट अभी तक कोई मिस हुआ नहीं, मैंने आपको बता दी शायद, आई थिंक। हम्म। हम थोड़े से स्लो चल रहे हैं लेकिन आई होप अंडरस्टैंड, समझ में आ रहा हो। हाँ सर। स्लो फास्ट नहीं टेंशन, अंडरस्टैंड होना चाहिए बस, बाकी कुछ नहीं। और आपसे वो हो रहा है, हमें अंडरस्टैंड हो रहा है। ठीक है, नहीं इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर मैं फास्ट इसलिए नहीं चल रहा कि आप गेट ना कर पाए तो फिर कोई मीनिंग नहीं, या मैं सही नहीं समझा पाऊँ तो फिर कोई मीनिंग नहीं है। फास्ट चलेंगे ना सर, हमें वो स्टडी के लिए भी टाइम होना चाहिए ना उतना। तो ऐसा ना हो आगे जा रहा है और स्टडी हमारा बैक चल रहा है। अब साथ में स्टडी करेंगे ना तो वो अच्छे समझ के आएगा। ठीक है, तो कल हम इसको ख़त्म करके और नेक्स्ट मतलब कल हम सर्वर लेवल वो डेटाबेस लेवल रोल ख़त्म करके नेक्स्ट मंडे से हम बैकअप और रिस्टोर करेंगे, ठीक है। हाँ हाँ चलेगा सर, कुछ नहीं। ठीक है, कल ज़्यादा नहीं 30 मिनट की क्लास होगी तो 30 मिनट में हम फिनिश कर देंगे इनको। हाँ 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 ठीक है, चलेगा। ओके आप ओके चलेगा। सरप्राइज भी है टाइम दे कल आप दीजिए। लोगों के लिए, अच्छा सरप्राइज है हमारे लिए। कल आप लोगों के लिए। कल मत लो सर। सर कल मत लो। मंडे और ट्यूसडे को लो सरप्राइज। मंडे और ट्यूसडे को लो सर। मीन्स हाँ हमें सर, हमें ना संडे सैटरडे संडे हमें ना प्रैक्टिकल के लिए और टाइम मिल जाएगा ना, तो हम भी थोड़ा सा कंफर्टेबल रहेंगे सरप्राइज के ठीक है, लिए। क्योंकि मैं इसलिए बोल चलेगा रहा हूँ ना? कि हाँ, आप इसलिए बोल हाँ रहा हूँ कि हाँ अगर टाइम मिल गया फिर तो आप फोकस करके तैयारी करके आ गए ना, फिर तो मैं हाँ। किसी और दिन लूंगा। नहीं हम ट्यूसडे और हाँ चलेगा, हम सैटरडे संडे ऑफ है ना, तो उस दिन कर लेंगे थोड़ा प्रैक्टिकल। तो ठीक आप है, फिर हाँ चलेगा, नो इशू। चलिए, ओके, ओके देन, बाय। बाय। हाँ।